Students of class 10th are expected to open the book named First Light. First Light and second poem just I am going to teach you. Second poem, the name of the poem is already written on the board, you just see. A Tiger in the Zoo. Poem 2, A Tiger in the Zoo is the second poem. First poem is already taught by my counterpart Ravi sir. That's why I'm just going to start this one. And from tomorrow, Sir Ravi sir will teach you fiction, and I will teach poetry. Okay? So in this way, today I'm going to start this one, A Tiger in the Zoo, for class 10th. Now it's written here in the beginning as an introduction. It's written, this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. Now here in the very beginning, that is given in the box also, lines are given that in the poem the tiger in the zoo and tiger in the forest are shown. Both the tigers are shown. But you have to find out, you have to discover which para is telling about a tiger in the zoo and which one is telling about a tiger in the forest. In this way, you have to see and you have to find out, and in this way you see the line I am just giving you and giving the word meaning also. You have to read silently, the line is given, but I am teaching you here. Now start. He stalks in his vivid stripes. Stalk. Stalk has got another meaning also, but here the meaning that is given, stalk, to move. Okay, he's just moving in his vivid stripes. Vivid means clear. Stripe means the lining that is there on the body. Okay, so he is moving in his vivid stripes. The few steps of his case, okay, means he is taking a few steps because the space is limited. It is not forest. In the forest, space is too much. But here in the zoo, space is limited. That's why it is moving up and down. Okay, and you are just seeing the lines on pads of velvet quiet. Pads means the very lower portion, the lower portion that is soul is called in human beings, and in the animals, in tiger and lions, that is called claw, that is called paw also, C-L-A-W, P-A-W, claw, paw. In this way, that claw, paw, that is called pads, and that is fleshy. वो काफी गुद्देदार है, मांसल है थोड़ा सा, और उसमें उसको कर है कि वो टच उसका वेलवेट की तरह हो रहा है. Velvet means मखमल की तरह, मखमली स्पर्श जैसे. First step was the case on pads of velvet quiet. Quietly he is moving. Quietly means silently. Oh, silently, चुपके से, बड़ा पीसफुली वो अपना off and on टहल रहा है, जैसे स्टॉप कर रहा है, मूव कर रहा है. In his quiet rage, but he is having some rage, anger. Rage means anger. Another race is also there, R-A-I-A-C, but that race is different. That race means to lift, that is another thing, to elevate. But here R-A-G-E, race means anger, गुस्सा. तो ये रेज में है quiet. Quiet means शांत, शांति से है, चुप है, कुछ गरज नहीं रहा है, रोइंग नहीं कर रहा है. रोअर, that is चिल्लाना, गरजना, ये सब कुछ नहीं है, वह शांति से. लेकिन लगता है, it seems that tiger is not having some rest of mind. He is angry. He is in angry mood. और इस तरह से ये क्लियर हो गया कि वो कहाँ है. Where is the tiger? Tiger is in the zoo. ये जंगल वाला नहीं है. ये पहला स्टैंजा आपको साफ कर दे रहा है. फिर कह रहा है he should be lurking in shadow. Should be lurking in shadow. Lurk means घात लगा के बैठना. To wait for someone to attack.
आप जैसे किसी के लिए लव करते हैं, एकदम घात लगा के बैठते हैं ना, जैसे आपको लगता है कि जैसे वो आदमी गुजरेगा उस पर अटैक करेंगे, इस तरह से वेट करते हैं किसी के लिए छुप करके, हिडन वे, और इस तरह से आप लर्क करने का मीनिंग समझ रहे हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो छाया में, ही इज इन शैडो बट इट सीम्स एज इफ ही इज लर्किंग। तो यहाँ किसके लिए वेट करता होगा? जानवर के लिए क्या होता है, वो लर्क करता है या वेट करता है तो अपने शिकार का, कि वो उस पर अटैक करेगा, फिर अपना भोजन वो प्रोक्योर करेगा, बस यही उसका पर्पस है। द पर्पस ऑफ एनिमल्स आर जस्ट टू प्रोक्योर फूड, और उसमें कोई दूसरा ऐसे गुस्सा का कारण नहीं होता। मनुष्य की तरह वो नहीं है कि वैसे बहुत सारे झगड़ा है, बहुत सारा स्कर्मिश है, क्वारल है, ये सब उसमें नहीं होता। तरह से वो लड़ करके, छुप करके, घात ला के बैठा है अपने शिकार के इंतजार में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास है और वो उस लंबे लंबे घास में स्लाइड कर रहा है। स्लाइड मीन्स स्लिप, और ये धीरे धीरे वो चल रहा है, जैसे लग रहा है कि वो चाह रहा है कि उसका शिकार उसे मिल जाए। तो ये तो स्ट्रेंजर क्लियर है, इट्स क्वाइट क्लियर दैट द टाइगर इज वेयर, नॉट इन द जू, इट इज इन द फॉरेस्ट। और इस तरह से वो जंगल में है, नियर द वाटर होल। तो कह रहा है कि ये होल है, होल का मतलब यहाँ पे डब्लू वाला नहीं है, नहीं तो वो संपूर्ण के सेंस में होता है। ये HOL, होल का मतलब क्या हो गया, वो गड्ढा के लिए आ जाएगा। पॉन्ड है, यहाँ पूल है। आप ये समझ लीजिए कि एक तालाब है, उसी तालाब के नजदीक व्हेन प्लम्प डियर पास, प्लम्प गुद्देदार, मांसल, फैटी, फ्लेश है, और वो मांस वाला जो डियर है, हिरन है, वो हिरन का वेट कर रहा है कि वो आए तो हम उस पर अटैक करें, अटैक करके अपना फूड प्रोक्योर करें। बस दिस इज द मोटो। और एनिमल्स आर हैविंग ओनली दिस मोटो, जस्ट टू प्रोक्योर फूड। और इस तरह से डियर का वेट कर रहा है वो डियर पास। इट शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, स्नॉर्ल करना थोड़ा सा रोइंग साउंड में होता है, गरजने की जैसे अराउंड हाउसेस। अराउंड हाउसेस मीन्स इन द फॉरेस्ट, नो, जस्ट एट द पेरीफेरी, एज पर, किनारे पर जंगल है, जंगल के जस्ट थोड़ा हल्का बाहर, और किनारे पर जो जंगल है उससे थोड़ा हट करके गांव है, बस्ती है, और वो बस्ती में वो वहां पर मनुष्य भी है, इस तरह से वहां शिकार मिल भी सकता है। तो ये दहाड़ता है, टाइगर इज रोइंग, वाई इस तरह से कि वो तमाम से कुछ उपलब्ध कर सके, वो अवेल कर सके, ये भी उसका मोटो हो सकता है। bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Bear means naked, nude. तो आप वैसे बोलते हैं ना, barefooted he came to me, वो नंगे पांव आ गया मेरे से, है ना। बेयर हेडेड, अब जैसे बॉल्ड हेड है कोई, तो सर पे बाल नहीं तो उसको बोलते हैं ना बेयर, या अगर बाल बेयर कैप नहीं है सपोज करिए, तो वो आपको बेयर हेड करें। सपोज समबडी इज इन हैबिट ऑफ यूजिंग कैप एंड ही इज दैट डे इज नॉट वेयरिंग, नॉट पुटिंग ऑन कैप, तो ही हैज कम बेयर हेडेड। उसके लिए ऐसे ज्यादातर बॉल्ड लोग हैं और वो बेयर हेड भी कहते हैं, और बाल नहीं है, तो इस तरह से वो दांत को निपोड़ता हुआ, दांत को एक्सपोज करता हुआ दिखाता है। क्या कि गुस्सा अपना ये सब कुछ वो दांतों से वो जाहिर कर रहा है, और एक तरह से वो बेयर करते हुए अपने फाइंस कर ले, जो टीथ हो गया, टीथ जो है ना वो जहरीला है, जैसे उससे काटता है, टीयर करता है, वो फैंस के लिए आ गया। अब उससे चीरने का काम वो करेगा, लाश को फाड़ेगा, उस शिकार को वो खाएगा। इस तरह से दांत को दिखाता हुआ फैंक्स का मतलब यहाँ टीथ के लिए आ गया, हिज क्लॉज, फैंक्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और अपना क्लॉज है, पंजा है, उसको भी थोड़ा सा जैसे ही जस्ट ट्राइंग टू शो द टीथ एंड क्लॉज, एवरीथिंग टू टेरराइज द पीपल। टेरराइज मीन्स टेरर से वो बनना है, भय, आतंक पैदा करता है, वो टेरराइज करता है, ताकि लोग जो है डर जाए और कुछ वो उसका काम भी बन जाए कुछ। तो इस तरह से स्टैंजा, इन दिस स्टैंजा व्हाट वी फाइंड दैट द टाइगर इज नॉट इन द जू, इट इज इन द फॉरेस्ट, इट इज इन द जंगल। और इस तरह से ये आप समझ गए कि वो कैसे जंगल में है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब ये इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, इट इज क्वाइट क्लियर दैट द टाइगर इज इन द सेल। अब टाइगर सेल में है, इसका मतलब तो है ये जू वाली बात हो गई, ये लाइन क्लियर है। तो इस तरह से ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, इज अ स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, हाँ, इग्नोरिंग विजिटर्स,
और इस तरह से कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, इग्नोर करना तो आप समझ रहे हैं, उसको अवॉइड करना, नजरअंदाज कर देना, कुछ चीज पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। अब फिर ये कहाँ पर आ गया है, जू में आ गया। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, वो ही इज माइटी, ही इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग and is having some strength, physical strength, but he is behind the bar. Bar means rod, छड़ है। छड़ का मतलब यहाँ उसके पिजड़ा से है, केज से है, वो केज के अंदर बंद है, कैप्टिवेटेड इनसाइड द केज, और इधर से वो कुछ नहीं कर सकता, वो बाहर निकल नहीं सकता है, बेचारा उसी में सेक्लूडेड रह रहा है। स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज, लेंथ ऑफ द केज, केज दैट इज पिजड़ा, पिजड़ा का पूरा लेंथ में आगे पीछे पूरे लंबाई में स्टॉक कर रहा है। स्टॉक मीन्स मूव कर रहा है, इज मूविंग अप एंड डाउन, आगे पीछे वो टहल रहा है, चूंकि वो तो वहां पर ही इज बाउंड टू स्टे देयर इनसाइड, वो जो जंगल नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है कि वो कहीं भी जा सके, कहीं घूम सके। इग्नोरिंग विजिटर्स, सम विजिटर्स आर देयर इन द जू, पीपल गो टू सी these ferocious animals or different type other animals also and birds also. ये लोग जो जा रहे हैं, विजिटर्स जा रहे हैं, उस पर इसका ध्यान नहीं, he is ignoring them, he is not looking at them. Why? Because he also has become habituated to ignore them. Every day this scenario is presented every day. That's why the animals are also knowing that this is the duty of people. People or viewers always come and they see the animals and birds and different type of creatures there in the zoo. The Easter says, stalking the length of the cage, ignoring visitors. He hears. तो ये इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, according to the instruction, you have already found out what? That the tiger is in the zoo or forest. Zoo. क्यों भाई, फॉरेस्ट में कैसे होगा ये? वो तो बता रहा है कि विजिटर्स जा रहे हैं, तो विजिटर्स तो ऐसे वहां भी जाते हैं, फॉरेस्ट में भी जाते हैं आजकल, लेकिन हाई का कि यहाँ पर पर्टिकुलरली इसके लिए ही है, चूंकि वो पूरा लेंथ केज का दिखा रहा है कि केज के लेंथ में वो चल रहा है। He hears the last voice at night. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. The stars are visible, the stars are seen. It means it is quite open. No, in the case the roof is covered, but stars are visible. It means it is there in the forest. And patrolling duty, on patrolling duty, police or the authorities are moving here and there. So it is there, particularly in forest. It is seen पेट्रोल कर रहे हैं, और पेट्रोल का मतलब यहाँ पर ये पेट्रोल नहीं है, वो जो गाड़ी में ईंधन होता है, फ्यूल नहीं है, या पीए वाला, आप स्पेलिंग देख लेंगे, तो ये पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, ये वॉच करने के लिए here and there they are moving just to watch the activity of the animals. Stars को स्टेयर कर रहे हैं with his brilliant eyes, shining eyes. Brilliant means चमकते हुए आंखों से इसको देख रहे हैं, at the brilliant stars, चमकते हुए तारों की तरफ वो देख रहे हैं। ऐसा से पता चल रहा है कि ये कहाँ है टाइगर, ये जू में है। जैसे ये आपका ये फिनिश हो रहा है, और इसके बाद आप देखेंगे कि ये अगला इसी चैप्टर में आपको कुछ ऐसा मिल जाए। ये तो इसमें एक ही दिया हुआ है, तो फिर हम लोग टुमारो नेक्स्ट क्लास फॉलोइंग मॉर्निंग हम आएंगे, फिर आपको ये अगला पोएम है तो देंगे। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट माय काउंटर पार्ट रवि सर विल टीच यू फिक्शन एंड आई विल टीच यू पोएट्रीज। इन दिस वे you will see the books and the lines also, what meaning I have given you, you will note down, and this will, you will get benefited. Okay, thank you. Tomorrow I will come again. Okay.